hydrogen gas electrode. So the first reference electrode which we had seen is the standard hydrogen gas electrode. We had seen the construction of standard hydrogen gas electrode. Then we had seen its reaction, formulation, then setting, application of SHE, difficulties in SHE. So this is all about standard hydrogen gas electrode, and after that we were talking about types of galvanic cells. Galvanic cells or voltaic cell, there are two types. One is primary galvanic cell and another is a secondary galvanic cell. तो यहाँ हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो let us consider the primary galvanic cell. Primary galvanic cell. And in case of primary galvanic cell, the example which we should keep it in mind so that its definition, its working can be very well understood. So dry cell is a best example to explain primary galvanic cell. Yesterday we had a discussion about this primary galvanic cell. It is a type of cell in which a spontaneous chemical reaction takes place, giving that chemical energy will be converted into electrical energy, and therefore the chemicals involved in primary cell get consumed. They get consumed, and when they get consumed, they cannot be further regenerated. They cannot be further regenerated. Once consumed, cannot be regenerated. Hence, over a period of time, this type of cell get dead. This type of cell get dead, and we have to replace it. Okay, so as chemicals get consumed, we cannot regenerate those chemicals within the cell. Hence, over a period of time, this type of cell get dead. Such cells are what we call as primary cell. And you can very well recollect this experience that once the dry cell get dead, we have to replace it. No regeneration, no recharging of it, not possible. That's why we call it as a primary cell. Correct? And example is a very simple example, dry cell. So let us consider this dry cell. Okay, before going to dry cell, primary galvanic हो गया. अब ये secondary को भी पढ़ लेते ना. तो secondary galvanic cell. What do we mean by secondary galvanic cell? Now secondary galvanic cell, आप जो lead storage battery use करते हैं, जो इन्वर्टर में ऑटोमोबाइल में लेड स्टोरेज बैटरी और सेल जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे वो एक्साइट वगैरह आपको ब्रांड दो चार पता होंगे, तो उसको हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल. क्या होता है सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल में? केमिकल्स आर यूज्ड अप to produce chemical energy which get converted to electrical energy. Right? जैसा यहाँ पर होता है. Primary chemicals are used up
to carry out a chemical reaction, and that chemical reaction can be converted into electrical energy. But in case of galvanic secondary galvanic cell, what happens? Chemicals can be regenerated further. यहाँ no regeneration, cannot be regenerated, cannot be recharged, but here secondary galvanic cell can be recharged and chemicals can be regenerated. Chemicals can be regenerated, and such type of cell is what we call as secondary cell. Okay, so this is the difference between the two galvanic cell, a primary galvanic cell and a secondary galvanic cell. Just दोनों को compare करते हुए मैं ये complete करता हूँ, then we will move to the details of dry cell. तो बेटा, what is a primary cell? Where chemicals are used up to bring about a chemical reaction. Those chemical to bring about a chemical reaction which generates chemical energy, and chemical energy converted to electrical energy. But what is the disadvantage of primary galvanic cell? That they cannot be recharged, chemicals cannot be regenerated. Once the chemicals are consumed, the cell becomes dead. We have to replace the entire cell. Okay, but in case of secondary galvanic cell, एग्जाम्पल क्या याद रखा हमने? लेड स्टोरेज बैटरी. इसमें भी फिनोमिना तो वही है. केमिकल्स आर कंज्यूम्ड टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन which generate chemical energy. Chemical energy converted into electrical energy, and after consumption of chemicals they can be regenerated. The cell can be recharged. अब रिचार्ज करने के लिए क्या करना होता है कि सच टाइप ऑफ सेल यानी सेकेंडरी सेल should be connected to a potential higher than the cell potential. क्योंकि जब हम केमिकल्स को रीजनरेट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना होता है. केमिकल रिएक्शंस are to be reversed. और इसको बेटा जब रिवर्स करेंगे तो we have to supply electrical potential greater than cell potential. इसीलिए तो जो रिचार्जिंग के लिए हमको ये लेड स्टोरेज बैटरी को शॉप में लेके जाना पड़ता, हम घर पे रिचार्ज नहीं कर सकते क्योंकि घर पे एक कंसिस्टेंट पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक करंट आता है और उस पे ये सेल वर्क करता है. अब उसकी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना है सो दैट केमिकल शुड बी रीजनरेटेड. तो नेचुरली रिवर्स डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन को जाना है तो उसे हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट करना पड़ता है. दैट इज द पॉइंट. ओके, और बिना हायर पोटेंशियल के रिचार्जिंग रीजनरेशन नहीं होता. तो प्राइमरी और सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल डिफरेंस आपके समझ में आ गया. ओके, फाइन. Now we move to this example of primary galvanic cell, that is dry cell. अब इस dry cell को डिटेल में स्टडी करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ऐसा क्वेश्चन आता है. राइट, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग of dry cell, explain construction and working of lead accumulator, explain construction and working of standard hydrogen gas electrode. So construction and working of dry cell, this is the target.
नाउ फर्स्ट पॉइंट अगर लिखेंगे हम, इट इज अ प्राइमरी वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये सबसे पहला सेंटेंस। इट इज a dry cell. It is called as a dry cell. It is a dry cell since no liquid is used as an electrolyte. But क्या important है यहाँ पर? But the electrolyte is available as a paste, है ना? तो एज अ एक्वस पेस्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। जैसे आपने डेनियल सेल का एग्जांपल हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट वाज द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज्ड अप। हियर द नेम इटसेल्फ ड्राई सेल, तो इसमें लिक्विड कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो लगने वाला है। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम एक पेस्ट के फॉर्म में यूज करेंगे सो दैट कि आयंस का ट्रांसफर होता रहे। पूरा ड्राई रहेगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आयंस के मूवमेंट के लिए एक मीडियम की जरूरत है। विदाउट मीडियम हाउ आयंस कैन बी ट्रांसपोर्टेड? So to make sure that ions to be transported, we use a paste of electrolyte instead of solution. अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये देखते हैं, बहुत सिंपल है ना? आपको भी ड्रॉ करना है, ब्लैंक स्पेस है आपके नोट्स में, तो उसमें क्या करेंगे, पहले लेंगे हम एक जिंक वेसल लेंगे। We take a zinc vessel. This zinc vessel itself will act as a anode. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। And it is lined with a paper spacer. तो ये outer surface zinc vessel. And this itself act as नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आप देखते हैं ना, आप जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं ड्राई सेल को, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है, समवेयर हियर पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज नथिंग बट एनोड। और बेटा एनोड पे अपने नॉलेज के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी रिएक्शन होने वाली है? एनोड की पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये जिंक वेसल हो गई, उसके जस्ट लाइनिंग दिया है यहाँ पर पेपर स्पेसर, गैप में पेपर लगा देंगे और इसके सेंटर में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो बनेगा वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मींस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट यू नो वेरी वेल। तो सेंटर में एक ग्रेफाइट रॉड प्लेस्ड होगी, ठीक है? तो यहाँ पर एक ग्रेफाइट रॉड, दिस ग्रेफाइट रॉड विल एक्ट एज कैथोड। कैथोड मीन्स अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, सही है? तो यहाँ से इसको सील कर देते हैं, तो ये क्लोज हो गया। और इसके बाहर में एक कनेक्शन के लिए हम क्या देते हैं, एक कॉपर या फिर ब्रास कैप। Brass is a good conductor and this is graphite electrode. देखिए ये लेबलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है, लेबलिंग आपको करनी है। ओके, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बेटा क्या बनेगा अपना? कैथोड, विच इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल पे हम अपने नॉलेज के लिए लिख के रखेंगे रिडक्शन रिएक्शन को, करेक्ट? तो ये आ गया ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अब
This graphite electrode is surrounded by a paste of, अब लिक्विड तो रखना नहीं है, हमको दो इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, तो this graphite electrode is surrounded by a paste of manganese dioxide and carbon black. तो कार्बन और MnO2 का पेस्ट, तो उसको भी लेबल करेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। लेबल करते हैं बेटा, क्या लिखना है मुझे, पेस्ट ऑफ, है ना। दिस इज व्हाट, पेस्ट ऑफ MnO2, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कार्बन black. This is the paste of MnO2 and carbon black around graphite. याद कैसे रखना है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है तो उसके कांटेक्ट में कार्बन रहना चाहिए, और ये जिंक इलेक्ट्रोड है तो जिंक इलेक्ट्रोड यानी जो रिमेनिंग स्पेस है, ये पूरी स्पेस में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट ये फिल कर देंगे. Rest of the space is filled up by zinc chloride and ammonium chloride paste. तो दो टाइप के पेस्ट हो गए, तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट तो रहना चाहिए, एक एनोड के लिए और एक कैथोड के लिए. तो यहाँ बेटा हम लिखते हैं दूसरा, पेस्ट ऑफ ZnCl2 plus NH4Cl, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. डन. तो ये है कंस्ट्रक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक वेसल which itself act as a negative electrode, that is anode, where oxidation reaction will take place. At the center there will be a graphite electrode. At the center there will be a graphite electrode which is surrounded by a paste of what, paste of MnO2 and carbon black. So it is surrounded by paste of MnO2 and carbon black. Rest of the area of this vessel is filled with paste of ZnCl2 and NH4Cl. आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में इसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में. जैसे हमने अभी आपसे कहा, क्या जैसा एक सेंटेंस बना कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ जिंक वेसल is itself acting as negative electrode anode where oxidation takes place. A paper spacer is placed. Zinc electrode is in contact with zinc chloride and ammonium chloride. Center में graphite rod in contact with MnO2 and carbon black. टॉप पे ब्रास कैप देंगे, ये कैथोड टर्मिनल, ये एनोड टर्मिनल. दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन. सही है. तो कंस्ट्रक्शन हो गया. अब हम पढ़ लेते हैं सेल रिएक्शन, क्या क्या सेल रिएक्शन होगी. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो सबसे सिंपल पहले एट एनोड बेटा काय का है, फिर से याद दिला रहे हैं आपको, जिंक का, है ना. और एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. उस पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन. डन. तो एट एनोड क्या होगी रिएक्शन, Zn solid passes into the solution in the form of zinc ions. अब सॉल्यूशन तो नहीं है, बट ये यहाँ से जिंक आयंस काय में जाएंगे, पेस्ट में. Zn2 positive aqueous plus 2 electron remains on the zinc metal plate, and that's why it becomes a negative electrode. Loss of electron of oxidation लिखेंगे. At anode हो गई फर्स्ट रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन एट कैथोड.
is a positive electrode and there we will face the reduction reaction. अब यहाँ पर रिडक्शन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, electrons which are liberated at anode are taken up by ammonium ions, positive charge ions present. ये देखिए यहाँ से जिंक आयन तो जा रहे हैं, तो अमोनियम आयन विल टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है. तो ये अमोनियम आयन दे टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन and 2 positive charge. तो अमोनियम आयन टेक अप इलेक्ट्रॉन गिविंग. अब इसका रिडक्शन होगा बेटा, रिडक्शन है ना. तो क्या मिलेगा हमको, ट्वाइस NH3 प्लस H2 गैस यहाँ पर जनरेट होगी. तो ट्वाइस NH3 प्लस H2, दिस इज व्हाट द रिडक्शन रिएक्शन. बट एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है यहाँ पर, हैशटैग लगा के इम्पोर्टेंट रिएक्शन. क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ जनरेट हो गई, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ अक्यूमुलेट होने लग जाती है. लाइटर है तो इट विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग एट द टॉप ऑफ द सेल. और अगर ये ज़्यादा वहाँ अक्यूमुलेट होने लगी तो सेल को बर्स्ट कर देगा, हमारा सेल लीक करने लग जाएगा. आर यू फॉलोइंग दिस? तो इसी रिएक्शन से नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी उसकी बात कर रहे हैं ना. तो अमोनिया तो कंबाइन हो जाता है जिंक के साथ और एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता, अमोनिया NH3 जिंक आयन के साथ कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बना लेता. लेकिन ये हाइड्रोजन गैस डेंजरस काम है. हाइड्रोजन गैस गेट अक्यूमुलेटेड और फिर वो अक्यूमुलेशन से प्रेशर जनरेट होगा, सेल लीक होना चालू होगा, बर्स्ट हो जाएगा. तो क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस को MnO2 इसीलिए लिया है. ये MnO2 क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देंगे, है ना. वी विल कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस MnO2. तो twice MnO2 plus H2 gas will give Mn2O3 plus H2O. देखिए 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 + 1 4 ऑक्सीजन, twice Mn and H2. तो ध्यान में रखेंगे, मैं लिख देता यहाँ सेंटेंस, MnO2 ऑक्सीडाइजेस H2 gas into H2O, करेक्ट. और ये H2O जो पेस्ट है उसको मॉइस्ट करने के काम आता है. ये जो वाटर बन गया, क्या होता है जब सेल वर्किंग रहता है सेल का, तो उसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है. वो हीट एनर्जी जनरेट होने से वो पूरा ड्राई हो जाएगा. तो ये जो पेस्ट लिया है ये जल्दी ड्राई हो जाएगा. तो वो ड्राइनेस को रोकने के लिए H2O का काम, तो वो भी यूजफुल हो गया. तो व्हाट इज द रोल ऑफ MnO2 इन ड्राई सेल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऑफ बीट क्वेश्चन. तो MnO2 ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर, और ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. ओके. अब बेटा इसको कैथोड की नेट कैथोड रिएक्शन अपने को लिखना पड़ेगा, नेट कैथोड रिएक्शन, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन यूज किया ना हमने. ये दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड किया आपने तो कैंसल क्या होगा, ये H2 गैस कैंसल, यहाँ H2 गैस कैंसल. तो फाइनल रिएक्शन एट कैथोड, नेट कैथोड रिएक्शन. हाँ जी जल्दी, ट्वाइस NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. सर हाँ सर 10 मिनट सर. हाँ हो जाएगा. ट्वाइस NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO2
plus 2 electron will give twice NH3 plus Mn2O3 plus H2O। तो है ये फाइनल रिडक्शन रिएक्शन आपके सामने। तो ये फाइनल रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन एट एनोड आपने लिखा, रिएक्शन एट कैथोड आपने लिखा। अब नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन यानी एनोड और कैथोड को ऐड कर देंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, नेट सेल रिएक्शन। तो ड्राई सेल की नेट रिएक्शन क्या होगी? तो इसके लिए आप एनोड की रिएक्शन को ऐड करो। तो Zn solid will give Zn2 positive plus 2 electron। कैथोड की रिएक्शन भी लिखते हैं फिर से यहाँ पर, twice NH4 positive plus twice MnO2 plus 2 electron। twice NH4 positive twice MnO2 plus 2 electrons will give Mn2O3 plus twice NH3 plus H2O। twice NH3 Mn2O3 plus H2O। हाँ जी, अब बेटा ऐड करेंगे तो ये आएगी सेल रिएक्शन। फाइन, चलो जी सेल रिएक्शन बोलते हैं आप। सेल रिएक्शन Zn solid हाँ, Zn solid plus plus 2NH 2NH4 plus 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 2 twice MnO2 solid MnO2। अब इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया बेटा यहाँ से, है ना, दोनों Yes. साइड से। अब प्रोडक्ट आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 plus twice NH3 plus H2O plus H2O। yes। so this is the net cell reaction। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरी रिएक्शन मिल रही है। सर और एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेट सेल रिएक्शन है। हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आ गया ना। दिस पार्ट इज द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ ड्राई सेल, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हो गया। अब यूजेस ऑफ ड्राई सेल, ये तो आपको पता है। ड्राई सेल इज यूज्ड टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर फॉर फ्लैश लाइट्स यानी टॉर्च जिसको बोलते हैं ना, टॉर्च यानी फ्लैश लाइट। और क्या है, पोर्टेबल रेडियोस, है ना, टेप रिकॉर्डर, सर इन क्लॉक। क्लॉक यस, क्लॉक में तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, और रिमोट में भी यूज़ करते हैं टू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और खिलौने वी यूज ड्राई सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट। सर, हाँ मोबाइल में टॉर्च पे भी यूज होता है। हाँ जी, टॉर्च वही फ्लैश लाइट ही बोलते हैं उसको। मोबाइल में ड्राई सेल नहीं होता है, खिलौने अलग अलग टाइप का सेल है ना मोबाइल वाला। तो ड्राई सेल वही जो अपन सेल यूज करते हैं, पेंसिल सेल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। कल हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी और लेड अक्यूमुलेटर। ठीक है, सो सी यू टुमारो। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके।